નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English, chapter number 7, adjectives. So first of all, what is the meaning of adjectives? Adjectives क्या है? Adjective means विशेषण. तो विशेषण क्या होगा? Here you can see that. पहले हम ये पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट? Here you can see that one picture. Grandma and friends are crossing Pluto. वो प्लूटो को क्रॉस कर रहे थे. ग्रामा इज टेलिंग देम अबाउट प्लूटो, और ग्रामा उसे प्लूटो के बारे में बता रहा था. Until recently, Pluto used to be the ninth planet of our solar system. Recently, Pluto है वो हमारा 9वां सोलर सिस्टम का ग्रह है. It was discovered in 1930. वो 1930 में डिस्कवर हुआ था. It is small and cold. In 2006, astronomers decided that Pluto was too small to be a planet. It is, in fact, a dwarf planet. It is even smaller than the Earth's moon. जो अर्थ का मून यानी कि चांदा है, तो चंदा से भी वो, चंद्रमा से भी वो छोटा है, राइट? प्लूटो हैज वेरी थिन एटमॉस्फेयर. वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है. It has a sharp broad orbit. Did you know that Pluto was named by a little girl? क्या आपको पता है कि प्लूटो का नाम एक छोटी सी लड़की ने रखा था? It was named by 11 years old Venetia Burney. वेनेटिया बर्नी ने प्लूटो का नाम रखा था, जो 11 साल की थी, राइट? Here, tick the correct box. Here you can see that one question is given in our grammar book on the page number 3030. The words in italics are used to describe the nouns. नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, या तो फिर प्लेस ऑफ नाउन्स, उसका प्लेस तय करने के लिए, राइट? सो द आंसर इज डिस्क्राइब द नाउन. नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो कैसा है, राइट? सो इंफॉर्मेशन अबाउट पिक्चर हैड कंप्लीटेड. आफ्टर completing that, one definition is given in our grammar book, but first of all, some example I will explain you. Red car, yellow butterfly, pink pen, white board, blue words, black heading, right? तो आपने देखा सारे नाउन्स के आगे मैंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए, राइट? रेड, पिंक, येलो, ब्लू, ब्लैक. तो ये सारा क्या हुआ एक्स्ट्रा वर्ड्स? यस, these words are called adjectives, right? तो एडजेक्टिव क्या होगा? एक बार हम बुक में चेक कर लेते हैं. An adjective is word that provides more information about a noun. वो हमें नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. So here you can see that blue color and black heading. तो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली. तो what color? Blue. What color heading is black, right? So there are 3 kinds of adjective. Adjective tell about the quality, quantity and the number of noun. So first one is quality. Quality में क्या आएगा? What kind? For example, this is an old fort. What kind fort is?
old, red, new, right? After that, quantity. Quantity means how much and how many. Countable noun and uncountable noun, right? How many exercises are there in this chapter? कितनी exercise है? 3, right? How many sentence in first exercise? Exercise A में कितने sentence है? 5, right? फिर uncountable में some food, little bunny, right? After that, third one is number. Number means 1, 2, 3, 4, right? फिर order number. Ordinal number बोलते हैं ना हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट? तो ये सारे हुए nouns के kinds. Nouns के kinds, adjective के kinds. Okay, so फिर से रिपीट कर देती हूँ. What kind, how many, what color, which number, how many numbers, right? After that, example दिए गए हैं. A good boy, 7 red apples, right? After completing that, we will going to learn exercise A. Read the following sentences and circle the adjectives. सेंटेंस को रीड करना है और एडजेक्टिव के ऊपर सर्कल करना होगा. सो फर्स्ट वन इज, दिस इज एन ओल्ड फोर्ट. फोर्ट कैसा है? ओल्ड. तो ओल्ड के ऊपर हम सर्कल करेंगे. हियर यू कैन सी दैट द वर्ड, राइट? इट हैज ब्यूटीफुल गार्डन. विच काइंड ऑफ गार्डन इज ब्यूटीफुल, राइट? तो फर्स्ट सेंटेंस में ओल्ड और ब्यूटीफुल वर्ड्स के ऊपर सर्कल आएगा. नंबर 2, माई डॉग ब्रूनो इज स्मॉल. कैसा है? स्मॉल. बट ही हैज शार्प टीथ. तो कौन से 2 वर्ड्स होंगे जिस पे सर्कल आएगा? ये यू कैन सी दैट द वर्ड आर स्मॉल एंड शार्प, राइट? थर्ड वन इज, 7 students from class 4 are going to attend the performance tomorrow. नंबर आए, कितने नंबर आए? 7. तो 7 के ऊपर सर्कल करेंगे. नंबर 4, Grandma is holding a blue umbrella. It has a tiny hole in it. Umbrella कैसी? What kind of umbrella is? Blue. And hole कैसा था? Tiny. Right? And the next one is, draw a straight line. Line कैसी? Straight. In your notebook, the teacher said. Right? So here you can see that the answer of exercise A. After completing exercise A, we will going to learn new points. Position of an adjective. उसकी पोजीशन क्या है वो हम देख लेते हैं. एडजेक्टिव यूजुअली कम बिफोर नाउन. नाउन से पहले. फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल प्लैनेट, अ स्टॉर्मी डे, स्ट्रेट लाइन, ब्लू अम्ब्रेला, रेड कोट, ब्लैक दुपट्टा, ब्लू फ्रेम, राइट? तो नाउन्स के आगे एडजेक्टिव आता है. इसी तरह adjectives also go after verb like be, is, are, has, have, get, become, look, seem, appear, sound, taste, smell, feel. For example, Pluto is small, right? Here, exercise A, sentence number 2. My dog Bruno is small. इसके बाद small आया, right? Number 1 example, this is an old fort. इसके बाद old, right? तो ऐसे noun से पहले और verb के बाद हम adjective का use कर सकते हैं. After completing that, we will going to learn exercise 2. Exercise B में क्या है? Put the words in this jumble,
sentence in correct order. Rewrite the sentences in your notebooks. आपको आपकी नोटबुक में ये सारे सेंटेंस रीराइट करने हैं. इट मीन्स फिर से लिखने होंगे. ओके, सो नंबर 1, मूस आर, उसके बाद ममल्स लार्ज फाउंड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. राइट, सो हियर यू कैन सी दैट मूस. सो फर्स्ट क्या आएगा? मूस आर, उसके बाद लार्ज ममल्स. तो हम बीच में से लार्ज वाला ऑप्शन उठा के मूस आर, फिर लार्ज, फिर ममल्स, फिर फाउंड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. राइट. नंबर 2, दे आर एनिमल्स हुफ्ड. उसके बाद पॉइंट यानी कि हमारा सेंटेंस वहां पे खत्म होगा. सो हियर they are hoofed animals dot means यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है. सो एनिमल्स hoofed की जगह क्या आ गया? hoofed animals. राइट. नंबर 3, a moose has nose, a broad and a neck short. neck short आता है? नहीं. nose broad आता है? नहीं. तो चलो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा. अ मूस हैज अ ब्रॉड नोज. दोनों चेंज हो जाएंगे. ब्रॉड नोज एंड अ शॉर्ट नेक. फिर से सेंटेंस रिपीट करती हूँ. अ मूस हैज अ ब्रॉड नोज एंड अ शॉर्ट नेक. उसके बाद डॉट यानी कि सेंटेंस कंप्लीट होता है. नंबर 4, मेल्स बिग हैव एंटलर्स. Males big have antlers. तो big have का हो जाएगा have big antlers और dot. Number 5 and number 6. Here you can see that the answer of both number. Right? After completing exercise B, we will going to learn exercise C. Read the following story. हमें ये स्टोरी को रीड करना है and fill the blanks with adjectives given in the box. और जो बॉक्स में एडजेक्टिव दिए गए हैं उसके साथ हमें ये ब्लैंक को फिल करना होगा. 1 has been done for you. एक आपके लिए कंप्लीट करके रखा है. There are some words. Right? So first one is reach. न्यू, ब्रॉड मीन्स बड़ा, चौड़ा, काइंड दयालु, लॉन्ग, माइटी मीन्स जोरदार, पुअर बेचारा, ग्रीडी लालची, एल्डेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, एंड द लास्ट वर्ड इज 4. Here you can see that long ago. तो यहाँ पे 1 blank हमको कंप्लीट करके दी है. long ago a blank जमींदार owned an elephant. उसके पास खुद का एक एलिफेंट था. सो जमींदार कैसा होगा? राइट. Here the first answer is rich. Rich जमींदार. A blank mahout looked after the elephant. Mahout means हाथीवान, महावत जो एलिफेंट की देखभाल करता है. राइट. तो वो कैसा होगा? लालची. राइट. So the second one is greedy. After that, he made the blank animal work, but gave it very little food. वो उस एनिमल को काम कराता था और थोड़ा ही खाना देता था. थोड़ा ही मतलब लिटिल फूड. तो वो एनिमल्स कैसा होगा? पुअर, बेचारा एनिमल. राइट. One day the huge animal gave a blank
द माउथ। कैसा झटका होता है? जोर का, राइट, इट मीन्स माइटी। एक दिन एक बड़े से एनिमल ने उसको जोर का झटका दिया। द माउथ फेल सिक। माउथ अब बीमार हो गया। He could not work anymore. अब वो ज्यादा काम नहीं कर सकता था। The Mahout's wife went to the elephant with her blind children. कितने children? Yes, 4 children. Mahout की वाइफ अपने चारों बच्चों को लेकर एलिफेंट के पास जाती है। She said, वो बोलती है, Why do you do that? आपने ऐसा क्यों किया? You have left us with no food. आपने हमें खाना खाने, फूड मतलब खाना, आपने हमें खाए पिए बगैर ही छोड़ दिया। My children are hungry. मेरे बच्चे अभी भूखे हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड अगर महावत की देखभाल नहीं, सॉरी एलिफेंट की देखभाल नहीं करता तो उसका जमींदार उसे पैसा नहीं देता। अगर पैसे घर में नहीं आते तो ये सब भूखे रहते, राइट। द एलिफेंट वाज अ ब्लेइंग एनिमल्स। एलिफेंट कैसा एनिमल है? दयालु, इट मीन्स काइंड। He put his trunk around the black boy and lifted him on to his. उसने अपने ब्लैक बॉय यानी एल्डेस्ट सबसे बड़े बच्चे के ऊपर अपनी सूंड रखी, उसके आसपास सूंड रखी और उसे उठा के अपने पीठ पे बिठा लिया। एल्डेस्ट सबसे बड़ा। From that day, उस दिन से the elephant obeyed the new Mahout. उस दिन से वो एलिफेंट, वो हाथी, उस नए महाउट, नया हाथीवान जो उसका आ गया था देखभाल करने वाला, उसकी बात मानता था। न्यू महाउट यानी कि नया। वन ब्लैंक हम भूल गए, डायरेक्टली आंसर बोल दिया। The eldest boy and lifted him on his broad back. बड़ी सी छाती, सॉरी पीठ, तो ब्रॉड, उसके बाद न्यू महाउट। From that day, the elephant obeyed the new Mahout. The boy grew up to become a kind and caring Mahout. और ये बच्चा बड़ा होके एक दयालु और अच्छा देखभाल करने वाला महाउट यानी कि महावत बन गया। So here you can see that exercise C had completed and also chapter number 7 adjectives had completed. Thank you for joining us.